लंदन के इलाके ब्रेंट में मेयर ऑफ ब्रेंट अरशद महमूद डार की जानिब से सालाना चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें लंदन भर से काउंसलर्स और मेयर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की और दिल खोलकर अतियात दी है। इसी पर देखेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। लंदन के इलाके ब्रेंट के सिविल सेंटर में सजने वाली इस सालाना तकरीब में मेयर्स गाउन पहने बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इलाकों के मेयर्स ने शिरकत की। मेयर ऑफ ब्रेंट अरशद महमूद डार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फलाही तंजीम रीड फाउंडेशन के क़याम का मकसद इंसानियत की फलाह बहबूद और तालीम की रोशनी को हर सू फैलाना है। उनका कहना था कि इस वक्त ये तंजीम बिला रंगो नस्ल बगैर किसी तफरीक के काम कर रही है। अरशद महमूद डार का कहना था कि ये तंजीम पाकिस्तानियों समेत दीगर कौमियत के लोगों की भी खिदमत में पेश है, जो कि नहायत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने शानदार फंड रेजिंग इवेंट पर शुरका को मुबारकबाद पेश की। Friend and our host for this evening, Councillor Liz Dixon, who's been absolutely wonderful. Thank you very much. इस मौके पर साबिक मेयर हॉन्सलो काउंसलर समिया चौधरी ने कहा कि इवेंट बहुत अच्छा है और बड़ी तादाद में मुंतखब नुमाइंदों की शिरकत काबिल सिताइश है। उनका कहना था कि रीड फाउंडेशन की फलाही सरगर्मियों को भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक ये जो ब्रेंट मेयर ने आज अपना गाला फंड रेजर डिनर रखा है, एक्सीलेंट डिनर है उनका, पहले भी बहुत एक्सीलेंट था। एंड वो जो है बहुत काउंसलर महमूद इज़ वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड to raise funds for his charities, and I would like to say to everybody here कि अपनी उनकी charity को support करें। उन्होंने अपने मेरे लिए में बहुत अच्छा काम किया, and I'm proud to be here supporting him। दीगर मुकर्रीन ने भी तकरीब से खिताब करते हुए तंजीम के फलाही कामों को बेहद सराहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कहा कि इंसानियत की खिदमत करना सबसे बड़ी नेकी है, जिसमें सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आज का इवेंट बहुत अच्छा है। मैं अरशद भाई का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया। मैं तो मेयर हूँ ईलिंग का, वहाँ भी मैं चैरिटी के लिए काम करता हूँ और भाई अरशद भाई ने सब कम्युनिटी को इकट्ठा किया है, एंड इट्स वेरी नाइस ऑफ हिम। It's the mayor's last event, and it's really good to see so many people out here this evening coming out to support him and all the and charities as well. I'm absolutely delighted today. This is my final gala fundraising dinner in Brent, and the people have turned up in their hundreds. I'm so pleased that they have joined us tonight and they are supporting my two charities, Sufra and Reed, and we are raising funds here tonight for the very worthy children and the charities. So hopefully we will make a hectic amount today so that we can help the charities. जिस तरीके से मुख्तलिफ तबकात के लोग यहाँ पे आए हैं और जिस तरीके से जनरॉसिटी के साथ यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। It's a wonderful event in an amazing venue, and I'm on the board of Sufra, one of the charities that's being supported through the event tonight. So I'm really grateful to everybody who bought tickets to come tonight, and it's a lovely venue and everyone's participating in a lovely way, and the mayor is to be celebrated for all the good work. We are here to wish the Brent mayor, and it is an amazing evening and we've enjoyed it. The food was great, and the ambience and everything about this evening has been amazing, and we want to bless him and thank him for inviting us and having this event. That we have, he's clearly a very popular mayor. To be able to get the whole communities out here together for his charities. Incredible, absolutely incredible. He's clearly a very effective mayor. He's a community engager. He clearly is much liked by the communities. We're here to raise much needed funds for his two charities, and I have to say it's such a brilliant event. We have so many different people from all different communities, from all parts of Brent, doing one thing, right, making sure that the young people, the young children who need our help and support get it in their time of need. And it's all thanks
the mayor of Brent, making sure that he drags in the crowds. That's what it's all about. The mayor making sure that everyone is recognised. तकरीब में हाज़रीन की तफरीह के लिए शानदार महफिल मौसीकी का एहतमाम भी किया गया। रवायती रक्स से शुरा बेहद महजूज हुए। इस मौके पर कई शुरा बेख्तियार झूमते रहे। तकरीब के आखिर में लोगों की तवाज़ो पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त से की गई। बर्मिंघम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 40वीं बरसी पर तकरीब का एहतमाम किया गया। जयालों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमात पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। बर्मिंघम से देखिए आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट। शहीद जमहूरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी पाकिस्तान और बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में मनाई गई। इसी मुनासबत से बर्मिंघम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UK कश्मीर के कोऑर्डिनेटर कमेटी के ज़ेर एहतमाम तकरीब मुनक्कद की गई, जिसकी सदारत मिडलैंड ब्रांच के सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद शबीर ने की। तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के मरकजी नायब सदर और साबिक सदारती मशीर वाजिद अली बरकी, मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी वकार असलम कियानी और पीपल्स यूथ बरतानिया के सदर यासर बिलाल थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि 40 साल गुजर जाने के बावजूद भी जियाले आज भी भुट्टो के नजरियात और फलसफे को जिंदा रखे हुए हैं। पार्टी कायदीन के खिलाफ हर साजिश और इंतकामी कार्रवाई का डट कर मुकाबला किया जाएगा। इस मौके पर वकार असलम कियानी, वाजिद अली बरकी, नायब हुसैन मुगल, ताहिर बिलथवी, चौधरी शेर, यासर बिलाल, शहजाद मुगल और दीगर ने कहा कि जियाले आज भी जोशो खरोश के साथ भुट्टोइज्म के फलसफे पर कायम हैं। तकरीब के इख्तिताम पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। मैनचेस्टर में ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर के 10 साल मुकम्मल होने पर एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें खुसूसी तौर पर बरतानवी शहजादे चार्ल्स को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया। बरतानवी शहजादे का ब्रिटिश मुस्लिम सेंटर के बच्चों ने भी पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसी पर देखेंगे तनवीर नकवी की रिपोर्ट। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर के 10 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी प्रिंस चार्ल्स बच्चों के दरमियान घुल मिल गए। बाद में ब्रिटिश हेरिटेज सेंटर के अरकान ने प्रिंस चार्ल्स को सेंटर के मुख्तलिफ शोबों का विजिट कराया और सेंटर अगराज़ो मुकासद के बारे में मालूमात फराहम की, जिस पर प्रिंस चार्ल्स ने तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर शहजादा चार्ल्स का कहना था कि इन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरह लोग काम कर रहे हैं और बरतानिया की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं और इन तमाम मुसलमानों का और पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार हैं। तकरीब में मैनचेस्टर के लॉर्ड मेयर, काउंसलर्स, मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले खवातीनो हजरात के अलावा मशहूर बिजनेसमैन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मावन खुसूसी अनिल मसरत ने भी शिरकत की। बरतानिया के शहर ड्यूसबरी में महफिल शेर सुखन और गीत गज़ल का एहतमाम हुआ। पाकिस्तान से आए मेहमान शेर खान राजा जावेद जैदी ने सूफियाना कलाम पेश करके समा बांध दिया। ये पुरवकार तकरीब पर देखेंगे बाबर मुगल की रिपोर्ट। सकाफत किसी भी खिते की पहचान होती है। दियारे गैर में होते हुए भी अपनी सकाफत से जुड़ा रहना कोई पटवारियों से सीखे, जो आज भी उसे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करने के लिए कोशा हैं। इसी रवायत को बरकरार रखते हुए ड्यूसबरी शहर में ख्वाजा ताहिर अयूब और दीगर ने शेर ख्वानी और गीत गजल की महफिल का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तान से आए नौजवान शेर ख्वां राजा जावेद जैदी ने अपने फन का मुजाहरा किया और खूब दाद समेटी। जैसे बीमार को बेवजह करारा जाए, खत शायद किसी शराबी का
महफिल में ढोल और घड़े की थाप और बाजे और सितार के सुरों ने वो समा बांधा कि शायकीन भंगड़े डालने पर मजबूर हो गए। महफिल में बरतानिया भर से लोग शरीक हुए। उनका कहना था कि इस तरह के सकाफती प्रोग्राम तफरीह के साथ साथ मेल मिलाप और सकाफत के फ़रोग का भी अहम जरिया है। दियारे गैर विच ये जो प्रोग्राम होना बहुत बड़ी बात है और इसने नाल अपनी माँ बोली की प्रमोशन होनी है। मैं मुबारकबाद पेश करना ताहिर अयूब साहब की जिन्हें बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक्कद किया है। तो इस तरह के प्रोग्राम बरतानिया च होने चाहिए ताकि असाने यंगस्टर जेडे उन्हें भी उन्हें भी इसने पर मालूमात मिले। आज ड्यूसबरी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होया। चौधरी अयूब ताहिर अयूब साहब ने पेश किया ऑर्गेनाइज किया। तो बरतानिया में शेर व अदब मजहबी सियासी अदबी सारिया चीज़ा ज़रूरी और बिलखसूस नई नस्ल और पुरानी नस्ल दोनों वास्ते बहुत ज़रूरी ये प्रोग्राम होने चाहिए। ताहिर अयूब साहब ने अपने साथियों इस महफिल ने तमाम किया। साड़ी कोशिश ये है कि जी साड़ी माँ बोली जबान है, साड़ी जी आबा अजदाद नी सकाफत है, उसकी जिंदा रखने वास्ते अस पूरी कोशिश करी रहे हैं। और साढ़े संगी साथी हर शहर तो आनी तो साना तामल करी रहे हैं और असाड़ी अपनी आने वाली नस्ल की भी पहचान कराना चाहते हैं कि जी साड़ी सकाफत है इसने विच बड़े फायदे हैं, इसने नुकसान कौन है। इस बज़म से मुझे कुदरती तौर पे बहुत प्यार है, तो आज मैंने पूरी कोशिश की है एक तो इस चीज़ को एक मुख्तलिफ रंग दिया जाए और दूसरा जो हमारे मेहमान पाकिस्तान से आए हैं खसूसन आर्टिस्ट उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाए। चूँकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में शायद उस तरह से उन्हें पजीराई नहीं मिलती है जिस तरह से मिलनी चाहिए। और दूसरा यहाँ की कम्युनिटी में जो नुमायाँ लोग हैं उनको भी अप्रीशिएट करने की हमने पूरी कोशिश की है। मैं आपके इस माइक के तवस्सुत से जितने मेरे मेहमान तूल वर्ष से आए हैं खसूसन मीडिया के दोस्त उनका दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना ज़्यादा अच्छा लगना पाया जी इंग्लैंड विच अच्छी तय खास कर जी साड़ी माँ बोली जबान है पठवारी उसकी प्रमोट होने तकी तय इतने यंगस्टर जितने भी है ब्रिटिश जितने भी है इतनी ज़्यादा मुहब्बत करने इस पठवारी जबान नाल कि मैं बयान ना करी सकना। इस टाइम असा इंग्लैंड जी ड्यूज बरी ने मकाम पर जी साड़ी माँ बोली है पठवारी पहाड़ी इसने फरोग वास्ते बरतानिया च प्रोग्राम जरा बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। असल ने बच्चों ने जी उन्होंने दिलचस्पी इजाफा कर रहे हैं प्रोग्राम। तो अस चाहते हैं कि पहाड़ी पठवारी माँ बोली वास्ते जितना भी प्रोग्राम इस तरह पूरे बरतानिया में मुनक़िद किए जान उस वास्ते उस बच्चों की बहुत ज़्यादा आना चाहिए। बच्चों की एक बहुत ज़रूरी चीज़ अस जिथे भी गए अपना रंग अस छोड़ने कोई शक नहीं, मगर इसना फ़ायदा अपनी नस्ल की नहीं हो रहा। इस वास्ते ये आवाज़ उठाई जाए कि इतने स्कूलों में वारिस शाह तो मियाँ मोहम्मद दायम इकबाल तो साईं अहमद अली रानी की किताबों ने तर्जमे किए जान या वो किताबां स्कूलों पढ़ाइया जान। असा इसकी अपनी सकाफत ता मनसा जिसले 10 साल बाद इतने बच्चे है संत। तकरीब की मेहमान खसूसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाउला अशरफ ने प्रोग्राम के इनेकाद को बेहद सराहा। Obviously at this time of great divide, particularly with Brexit ongoing at the moment and some of the divisions that is causing, it's just great to be here amongst friends this evening and like I say to recognise some of those positive achievements that people are making in our community. And I hope we can do this sort of thing much more often, bring as many members of the community in as possible and show that we're all working together for common values. तकरीब के इख्तिताम पर फनकारों में यादगारी शील्ड्स भी तकसीम की गईं। सकाफत तो दूर रहने वाली कौमां अपनी शनाख्त भी भुली गछनियां। दियारे गैर रहने में भी पठवारी शेरखाना अपनी सकाफत की अपनी अगली नस्ल पहुँचाने वास्ते बहुत सोहना किरदार अदा करने पे। वकार बाबर मुगल 92 न्यूज़ ड्यूसबरी। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में शौकत खाना मेमोरियल कैंसर अस्पताल के लिए फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ फिल्मी अदाकारों माया अली और शहरियार मुनव्वर खुसूसी तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों ने दिल खोलकर शौकत खाना मेमोरियल कैंसर अस्पताल के लिए एहतियात दी। इसी पर देखिए राजा हबीब की ये रिपोर्ट।
पेरिस के नवाही इलाके विलियर लाबेल में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल के लिए फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ फिल्मी अदाकारों माया अली और शहरियार मुनव्वर ने खसूसी शिरकत की। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए भरपूर एहतियात दिए। मुकर्रीन का कहना था कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल पाकिस्तान में कैंसर के मरीजों के लिए एक उम्मीद की किरण है। अस्पताल के लिए एहतियात देने वाले पाकिस्तानी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू में माया अली और शहरियार मुनव्वर का कहना था कि इन्हें फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों का जज्बा देखकर बेहद खुशी हुई। तीसरा शौकत खानम का जो तीसरा हॉस्पिटल है कराची में जो खुलने जा रहा है, जो इंशाल्लाह खुल जाएगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं, उसके फंड रेजर के लिए यहाँ पे हैं। और इस वक्त पेरिस की सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी ने बहुत मोहब्बत दिखाई है और बहुत सारा दिल खोल के डोनेट किया है। और मैं ये चाहती हूँ कि ये सिलसिला सिर्फ यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हम लोग अभी जहाँ जाएं, इवन हमारे अलावा जितने लोग यहाँ पर इसके साथ जुड़े हुए हैं वो सब ये सिलसिले को आगे लेकर जाए। अब इसके बाद हम स्टॉकहोम में भी होंगे और नॉर्वे में भी होंगे, तो वहाँ पे भी हम चाहेंगे कि आप लोग सब दिल खोल के डोनेट करें। उस्ताद यूनुस साहब की और बाकी सारी कम्युनिटी की ताउन के साथ बहुत ही अच्छा हुआ है और तोक़्क़ों से ज़्यादा फंड रेजिंग हुई और इंशाल्लाह ताला अगला प्रोग्राम इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। शौकत खानम मेमोरियल के लिए जो फंड रेजिंग यहाँ पे हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है और सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। तकरीब के दीगर शुरका ने भी शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए भरपूर ताउन का इरादा किया। माया अली और शहरियार मुनव्वर फ्रांस के बाद दीगर यूरोपीय ममालिक में भी शौकत खानम कैंसर अस्पताल की फंड रेजिंग तकारीब में खसूसी शिरकत करेंगे। कैमरामैन बाबर मुगल के हमरा राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस, फ्रांस। गवर्नर पंजाब अमेरिका के गैर सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए, जहां वो तकरीबन 15 रोज तक क़याम करेंगे और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करेंगे। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पीटीआई के मकामी ओहदेदारों ने गुलदस्ता पेश करके गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब हफ्ते को न्यूयॉर्क में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे, जिसमें कम्युनिटी के अफराद खुसूसी पीटीआई के हामियों की अक्सरियत शिरकत करेगी। इतवार के रोज़ उनकी वाशिंगटन में मसरूफियात हैं। कम्युनिटी की मुमताज़ शख्सियात और मुस्लिम फॉर ट्रंप नामी तंजीम के रूह रवा साजिद तारड़ उनके एजाज़ में डिनर देंगे, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मुजीद भी शिरकत करेंगे। उनके एजाज़ में बाल्टीमोर, वर्जीनिया, शिकागो, कैलिफोर्निया, टेक्सास में भी तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा, जहां वो साफ पानी की फराहमी के लिए अपनी तंजीम सरवर चौधरी फाउंडेशन के लिए कम्युनिटी से फंड्स की अपील करेंगे। गवर्नर पंजाब ने अमेरिका पहुंचते ही सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने न्यू जर्सी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से मुलाकात की। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए दिन रात कोशा है। न्यू जर्सी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर अली मलिक ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के एजाज़ में इशाया दिया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और दीगर कम्युनिटी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया। इस मौके पर चौधरी सरवर का कहना था कि उनकी हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए दिन रात कोशा है। हुकूमती पॉलिसियों से सयाहत में भरपूर इजाफा हो रहा है। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में मसला कश्मीर से मुतल्लिक अवाम में आगाही पैदा करने के लिए अमन मार्च का इनेकाद किया गया। मार्च में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। मार्च का मकसद मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम उजागर करना और दुनिया को ये बावर कराना था कि भारतीय जंगी जनून खत्ते के लिए खतरा बन चुका है, इसलिए कश्मीर के मसले का फौरी हल देर पाम के लिए नागुज़ीर है। मार्च हैम्बर्ग शहर के मरकजी बाजार से होता हुआ शहर के टाउन हॉल पर ख़त्म हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी को दचका कांग्रेस ने यमन जंग की हिमायत खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया। ऐवान नुमाइंदगान ने यमन में जारी जंग में अमरीका का किरदार खत्म करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 245 और मुखालिफत में 175 वोट डाले गए। डेमोक्रेट्स की अक्सरियत वाले ऐवान में 16 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। बिल पर वीटो किए जाने के कवी इम्कानात हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि बिल से शदीद नौयत के आइनी तहफ़्फ़ुज़ात जन्म ले चुके हैं। यमन में 2015 से जंग जारी है, जिसमें 17,000 से ज़ायद अफराद हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। मारूफ अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में 9 पाकिस्तानी भी नुमाया जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने अंडर 30 एशिया की फहरिस्त जारी की है, जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में कारहाय नुमाया असर अंजाम दिए हैं। फहरिस्त में 9 पाकिस्तानी नौजवानों को भी जगह दी गई। इनमें ऑनलाइन सफरी सहूलियात कंपनी रोशनी राइड के शरीक बानी जिया फारूकी, हसन उस्मान, हिना लखानी और मुनीम मियाँ शामिल हैं।
भारत में ताजमहल के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वाकया मुगल बादशाह शाहजहां के सालाना उर्स के मौके पर उस वक्त पेश आया जब नौजवानों के गिरोह ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। इसी पर यह रिपोर्ट। भारतीय शहर आगरा में मोहब्बत की अलामत ताजमहल भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद भारत में खलबली मच गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक नारेबाजी करने वाले एक नौजवान की शनाख्त कर ली गई है और सिक्योरिटी एजेंसियों ने उसकी तलाश भी शुरू कर दी है, लेकिन ताहाल इस नौजवान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। भारतीय मीडिया के मुताबिक नौजवानों का एक गिरोह उर्स के मौके पर ताजमहल के अंदर दाखिल हुआ, जिन्होंने सब्ज चादर उठा रखी थी। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में महफिल समा सजाई गई, जिसमें नामवर कव्वाल नुसरत फतेह अली खान और अमजद साबरी को ट्रिब्यूट पेश किया गया। पाकिस्तान से आए कव्वाल महबूब फरीदी और हमनवाओं ने सूफियाना और लेजेंड फनकारों के गाए हुए कलाम पेश करके ऐसा समा बांधा कि हर कोई झूम उठा। महफिल समा में शरीक मेहमानों, जिनमें बच्चे, बड़े और ख़वातीन शामिल थीं, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस से खूब लुत्फानंदोज हुए। इस मौके पर मेहमान कव्वाल महबूब फरीदी ने कहा, सूफीज़म के फ़रोग के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि नुसरत फतेह अली खान और अमजद साबरी का अंदाज और कलाम लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहे और कव्वाली से लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहें। बहुत ज़रूरत है सूफीज़म में, सूफी म्यूज़िक की बहुत ज़रूरत है। वो लोग लेजेंड थे, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन उनको हमेशा याद रखा जाएगा। और आज हमने उनको भी ट्रिब्यूट किया। नुसरत फतेह अली खान हमारे अंकल लगते हैं, तो उनको भी ट्रिब्यूट किया और अमजद भाई को भी ट्रिब्यूट किया। शारजा सेंटर में होने वाले शानदार महफिल सिमा में लोगों का जोश दीदनी था। लोग फर्त जज्बात में ढमाल डालते और फनकारों को भरपूर दाद देते रहे। तकरीब में सदर सोशल सेंटर चौधरी खालिद हुसैन, जबकि खालिद मलक ने बतौर मेहमान खुसूसी कव्वाल और दीगर शख्सियात में शील्डें और तोहफे तकसीम किए। सैयद मुदस्सर खुशनूद, शारजा, मुत्तहिदा अरब अमारात। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।